Hi, good afternoon, Swati. How are you? Nice. Good afternoon. Merry Christmas. Good afternoon. Merry Christmas. Yes, it's an amazing day of Christmas. Okay, so let's start our big stage. Oh, मेरा ये ब्लूटूथ चालू है इसलिए इस पे नहीं हो रहा है. एक just a second. In the same position. Just move your hands faster and faster. Let's do. Okay, so let's start. 3, Good afternoon, Batul. 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on. Fast. Still faster. Yes, faster. Come on. Go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, Yes, very nice. I'm the winner. Very nice. We And you all say are to the yourself, winners. I am the winner. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. I'm the winner. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. Yes, I'm the winner. Now you say to yourself, Yes, I'm the winner. I'm the winner. Yes, I'm the winner. I am the winner. I'm the winner. I'm the winner. And now we say to ourselves, I can. I can. I can. I will. I will. must. I must. I can. I must. I must. I can. Thank I you. will. I Thank must. you. Thank you so much. Thank you. Wow, recharged. Okay, let's start our prayer. I hope everything's okay. Oh, Google बोल रहा है, I hope everything is okay. Yes, everything is okay. Okay, let's start our prayer. Take some deep breaths. Thank you, God. Thank you so much for this beautiful, abundant life full of love, peace, harmony, light, abundance, and prosperity, wealth, and success. Thank you so much for all the harmony in my relationships. Thank you so much that you have given me one more day to explore the world and to enjoy each moment in this beautiful life. The life that is given by you, not by a chance, but I'm so blessed to have this beautiful life. इन ये सिखाने के लिए कि कैसे मैं अपनी लाइफ को जीऊं, कैसे मैं अपनी चॉइसेस, अपनी खुद की चॉइस के साथ
कैसे मैं लाइफ को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकूं, वो सारी चीज जो सिखाने के लिए मुझे आई लाइफ में, वो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुल लाइफ के अंदर जो भी मैं एक्सप्लोर कर पाई अभी तक, इतने सारे सिटीज, इतने कंट्रीज एक्सप्लोर कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी, इतना अच्छा ये जीवन है, और सब जगह पे अलग अलग लोगों से मिल पाई। हमेशा अलग अलग लोगों का कल्चर जानने को मिला। इतनी अलग अलग लोगों से लोगों की भाषाएं देखने को मिली, जानने को मिली। वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कलीग्स के लिए शुक्रिया, ऐसे फ्रेंड्स के लिए, और सारी इतने सब लोगों के लिए शुक्रिया जिन्होंने कहीं ना कहीं पे मुझे कुछ न कुछ सिखाया जीवन में। और सबसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स का, मेरे मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये जीवन में लाने के लिए, और ये पूरा जीवन इतने अच्छे से मुझे बड़ा करने के लिए। बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयर से मुझे पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने। वो हमेशा मुझे इतना एनकरेज करते थे और करते हैं अभी भी। वो हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाते थे। जब भी मैं बोलती थी कि हाँ पापा मुझे ये करना है, तो मेरे पापा हमेशा मुझे हाँ बोलते थे सभी चीजों के लिए। कभी वो मना नहीं करते थे। उनके लिए तो मैं उनका एक अभिमान था हमेशा, और हमेशा मैं रहूंगी उनका एक अभिमान। तो वो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पापा। आपने हमेशा मुझे बहुत ही प्यार से, बहुत ही एक अलग ही प्रकार के अभिमान के साथ बड़ा किया। हमेशा मेरी सारी ऐसी चीजों को भी जानने दिया जो कभी कभी आपके साथ में अग्री नहीं होती थी। वो सारी चीजों के लिए आई एम रियली रियली सॉरी एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, कि जिसमें आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन अलग है या अलग था, but I still love you and I know you still love me, even though we have a different opinions sometimes. और आपके साथ अग्री ना करने के लिए, और आप हमेशा मुझे तो भी अपना अनकंडीशनल प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्राना, दिल से आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतने अच्छे से बड़ा किया। हमेशा मेरी एक एक छोटी या बड़ी से बड़ी जरूरियातों का ध्यान रखा। हमेशा मेरी लाइफ में खुशियां भरते रहे। हमेशा मुझे वही ब्लेसिंग्स देते रहे कि बस हमेशा मैं आगे बढ़ती रहूं लाइफ में। तो वो सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मम्मी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे पैदा किया, अपना दूध पिलाया, हमेशा मेरी खुशियों में खुश रहे। जब मैं रोती थी तो आप भी रोते थे, और जब मैं हंसती थी तो आप हंसते थे। वो सारे पलों के लिए, जो जितनी भी अच्छी अच्छी मेमोरीज है चाइल्डहुड की, वो सारी मेमोरीज के लिए शुक्राना। मेरे भाई बहनों के लिए शुक्राना। वो दोनों की वजह से मेरी लाइफ में बहुत खुशियां हैं, और बहुत एक अलग तरह का अपनापन है। एक अलग तरह की एक सुरक्षा महसूस होता है कि हाँ मेरी लाइफ में ये सारे लोग हैं। इतने प्यारे से लोग हैं मेरी लाइफ में, जिनकी वजह से मेरी लाइफ और सुंदर होती जाती है। मेरे स्पाउस के लिए, मेरे इन-लॉज के लिए भी बहुत शुक्राना। मेरे इन-लॉज के सिबलिंग्स के लिए भी बहुत शुक्राना। पूरे ये जितने भी रिश्ते हैं मेरी लाइफ को बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी बनाता है। ये सारे रिश्ते मुझे कहीं ना कहीं पे परिपूर्ण का एहसास दिलाते हैं। ये सारे रिश्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि लाइफ में इतने अच्छे सिस्टर्स, ब्रदर्स
और इतने अच्छे स्पाउस, इतने प्यारे मम्मी पापा देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। ये पांचों तत्वों का बहुत बहुत शुक्रिया। धरती माता का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हवा, ग्लोरियस एंड मैग्निफिसेंट एयर दैट वी ब्रीथ। ये ग्लोरियस पानी का शुक्रिया, जो पानी हम पीते हैं। हमारे अंदर भी 70% वाटर है, और हमारा ब्रेन 80% वाटर से बना हुआ है। उस सारे पानी के लिए शुक्राना, जो हमेशा बचपन से लेके आज तक हमें मिलता आया है, इजीली, बहुत आसानी से मिला है। जब कभी बचपन में पानी नहीं होता था और हम जैसे हैंडपंप के ऊपर या ऐसे लेने जाते थे वेल में, पानी को भर के लाते थे, तब हमें पता था कि पानी का क्या इम्पोर्टेंस है। और इतने अच्छे से पूरी लाइफ इजीली पानी भरपूर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इजीली मिल गया हमेशा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये सारी चीजों के लिए शुक्राना, जो बहुत इजीली हमें हमारी पूरी लाइफ को लग्जूरियस बना देती है और लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। अभी लाइफ में जो जो जरूरियातें हैं, भौतिक जरूरियातें, वो सारी बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनफेक्ट लाइफ अगर पहले से देखे, 10 साल पहले या 10 साल के बाद कभी देखे, तो लाइफ में बहुत कुछ चीजें बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। पहले कभी नहीं सोच सकते थे कि इतना जल्दी फ्लाइट्स में 2-2 3-3 महीने में हम फ्लाइट्स में घूमेंगे। बट अभी फ्लाइट्स की टिकट इतनी इजीली अफोर्डेबल एंड अवेलेबल है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें जो भी करना होता है हम इजीली कर सकते हैं। पहले हमारे पास कार या वो चीजों होने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता था, बट अभी इतनी इजीली वो सारी चीजें हमारे लाइफ में अवेलेबल है, हमारी लाइफ को और आसान बनाती है। ये पूरी टेक्नोलॉजीज का बहुत बहुत शुक्राना कि जूम के थ्रू कहीं पे भी दुनिया भर में कहीं पे भी हम आमने सामने बात कर सकते हैं। हमारे मोबाइल्स के लिए ये व्हाट्सएप, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया के लिए भी शुक्राना कि जिसकी वजह से हम अपने लव्ड वन से बहुत दूर बैठे होते हैं तो भी हम उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ कभी भी आमने सामने मिल सकते हैं। वो सारी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये पांचों तत्वों के लिए शुक्राना, हवा, पानी, धरती माता, ये पूरा हमें स्पेस देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो हमें इतने अच्छे से हेल्दी रखती है, फिट रखती है हमेशा। वो बॉडी के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सन के लिए, मून के लिए, जिसे हम पता है कि ये सारी चीजें, हमें लगता है कि ये लिविंग नहीं है, बट एक्चुअली एवरीथिंग इज लिविंग, लिविंग बीइंग्स। जैसे ही हम इस तरह से देखने लगते हैं तो सारी चीजें हमें और अमूल्य लगने लगती है। तो उस सारी चीजों के लिए जो हमारी लाइफ में है, उस सब के लिए बहुत 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 ज्यादा शुक्राना, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, now let's do our EFT. Any suggestion for EFT? जैसे हम EFT कोई भी चीज के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लाइक कोई पेन है बॉडी के अंदर, उसके लिए भी उस दिन मैंने पूरा हेल्थ के लिए जो करवाया था, आप उसमें कोई पेन भी इंक्लूड कर सकते हो, पेन के लिए भी कर सकते हो। फिर मान लो मनी के लिए, तो हमने कल ही किया कि मनी के अंदर आपके जो जो ब्लॉक्स है, वो सारे ब्लॉक्स के लिए आप रोज भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो हमने उसके लिए भी किया कि हमारे ड्रीम्स है और हमारे ड्रीम्स के अंदर कोई बाधा बार बार आ रही है, तो वो ब्लॉक्स को निकालने के लिए भी हम EFT कर सकते हैं। और अपने रिश्तों के लिए तो चलो एक्चुअली रिश्तों के लिए करते हैं, ठीक है। ओके। जैसे हमारे सोर्स रिलेशंस के लिए, मम्मी पापा के लिए और
और बाकी सारे रिश्तों के लिए जहाँ पे कहीं ना कहीं पे अगर कुछ है, कुछ थोड़ा सा भी खट्टा मीठा है, तो उसके लिए आज EFT करते हैं, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट. Even though sometimes I have a different opinions for some of my relations, and they don't approve of me, but I truly and completely choose to love and accept myself. कभी कभी मेरे रिश्तों में मैं उनके साथ अग्री नहीं करती, उनकी बातों में सहमत नहीं होती, इसलिए वो मुझे अप्रूव नहीं करते. But still, I choose to love and accept myself. Even though I sometimes feel like I'm not good enough for my relations. I'm not exactly what they expect me to be. मैं उनके expectations के हिसाब से खरी नहीं उतर पाती हूँ. But still, I deeply and completely choose to love and accept myself. Now take some deep breaths. Call upon the divine energy to free yourself of all these negativity. Okay, let's start. Even though मुझे लगता है, मुझे कभी कभी डर आने लगता है अंदर से, क्या मेरे रिलेशन खराब तो नहीं हो जाएंगे जब मैं इनके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाती हूँ, या जो वो बोलते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे काम नहीं करती हूँ. तो वो सारे डर, वो सारी चिंताओं को मैं पूरी तरह से रिलीज करती हूँ. And I love and honor myself. I respect myself. और भले मेरे अंदर ये विचार आता है कि क्यों क्यों ये लोग मुझे समझते नहीं है या अप्रूव नहीं करते हैं, but I understand it's just an opinion, and I choose to love and accept the way everything is and everyone are. मैं सबको वो जैसे है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करती हूँ, और जबरदस्ती जो चीजों को बदलना होता है मुझे, ऐसे सारे विचारों को पूरी तरह से रिलीज करती हूँ, और लोगों के ओपिनियंस को, उनको रहने के ढंग को,
उनकी चॉइसेस को, उनके डिसीजंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। And I allowed myself to be completely myself. मैं अपने आप को जो मैं हूं वही बनने के लिए परमिशन देती हूँ। और किसी और के ओपिनियन से या किसी और के डिसअप्रूवल की वजह से मैं अपने आप को बदलती नहीं हूँ, जबकि मैं अपने आप को जैसी हूँ वैसी ही एक्सेप्ट करती हूँ। And I honor and approve of my own self. I honor and respect my own self. And yes, I accept and respect everyone as they are. उनके जीने का ढंग या उनके डिसीजंस, उनकी चॉइसेस, वो सबको भी मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। और वो जितना भी रेजिस्टेंस है मेरे अंदर, जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है मेरे अंदर, और जितनी भी लिमिटेड सोच है मेरे अंदर, वो सबको रिलीज करती हूँ कंप्लीटली। वो सबको जाने देती हूँ। And I free myself. I free myself from all those thoughts with which I try to change others. The only person that I'm responsible for is myself. And I truly accept the way Almighty has made everything and made everyone. I truly accept. मैं सबको जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। And I truly and deeply choose to love and accept myself. I honor and approve of myself. I approve of myself. And so it is, and so be it. So be it. तो जैसे आज का EFT हमने इसी के ऊपर किया कि अगर किसी और के बारे में हमें बहुत कभी-कभी हमें अंदर से अर्ज आती है कि मैं इसको पूरी तरह से चेंज कर दूं, ये अच्छी चीजें हैं, ये क्यों नहीं मानते हैं, या क्यों इस तरह से ये बिहेव नहीं करते, या इस तरह से क्यों ये चेंज नहीं हो जाते। तो ये सारे ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव नहीं बोल सकते, बट ऐसे जो अर्जेस आते हैं हमारे अंदर से, उसको रिलीज करना है, क्योंकि किसी को भी हमें चेंज नहीं करना है। जैसा भी ऑलमाइटी ने जो भी बनाया है वैसा ही सब कुछ ठीक है। तो आज हम होओपोनोपोनो भी इसी के ऊपर करेंगे। सो लेट्स डू इट। अपने दिल के ऊपर हाथ रख के हम सबके साथ फॉरगिवनेस मांगेंगे, जिनको हमने कोई भी टाइम पे कुछ चीज थोपने की कोशिश की हो,
उनके ऊपर उनके ओपिनियन को बदलने के लिए हमने उनके ऊपर कुछ थोपा हो, उसके लिए आज हम पूरी तरह से अपने दिल से उनसे माफी मांगेंगे. ओके, सो लेट्स डू इट. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरे अंदर वो सूरज की पूरी जो गर्मी है, जो प्रकाश है, वो मेरे एक एक सेल के अंदर फैल गया है. And with this divine energy within me, I want to ask for forgiveness. मैं दिल से वो सबसे माफी मांगती हूँ जिनको कहीं ना कहीं पे जबरदस्ती मैंने अपने ओपिनियंस को या अपने वे ऑफ बीइंग को थोपने की कोशिश की, या मैंने कहीं ना कहीं पे जाने अनजाने उनको बदलने की कोशिश की, जबकि वो जैसे है वो परफेक्ट है. तो वो सारे इंसिडेंसेस के लिए मैं आज दिल से डिवाइन एनर्जी से माफी मांगती हूँ. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. मैंने अपने स्पाउस के ऊपर, अपने खुद के बच्चों के ऊपर या अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने सिबलिंग्स के ऊपर कभी भी उनको कोई भी चीज के लिए मेरा अपना खुद का ओपिनियन जो मुझे सही लगता था वो थोपने की कोशिश की, या माई वे ऑफ लिविंग जो मैं जिस तरह से जीती हूँ अपने जीवन को मैंने उनके ऊपर थोपने की कोशिश की, या कभी भी मैंने उनको अपनी चीजों के लिए जबरदस्ती की, वो सारे 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 इंसिडेंसेस के लिए प्लीज 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 फॉरगिव मी. प्लीज मुझे माफ कर दे. And I ask for forgiveness for eternity, to free myself and to free others as well. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. और जो भी मेरी ईगोइस्टिक जो मेरी एक खुद की जो ईगो के बेस के ऊपर कुछ ऐसा मैंने खड़ा किया था, वो पूरी तरह से वो ईगो को मैं आज रिलीज करती हूँ. एंड आई चूज टू बी हम्बल. आई चूज टू बी लविंग. वो प्यार को इनवाइट करती हूँ. बस प्यार ही प्यार मुझे देना है, किसी को भी. वो प्यार, वो सम्मान, लव, रिस्पेक्ट, all those good things that I want to give everyone. और उसके अलावा जो भी मेरे अंदर है, जो भी इगोइस्टिक चीजें हैं, वो सब मैं रिलीज करती हूँ. और वो सारे चीजों के लिए मैं आज दिल से माफी मांगती हूँ. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
अगर मेरे किसी का भी मैंने अगर दिल दुखाया है अपने ओपिनियन की वजह से या अपने खुद के स्ट्रॉन्ग व्यू की वजह से, किसी को भी अगर मैंने कुछ हर्ट किया है, तो सबके लिए दिल से माफी मांगती हूँ। अगर वो मेरे मम्मी पापा है या मेरे इन लॉज है, मेरे भाई बहन है, मेरे स्पाउस है, कोई भी है, मेरे बच्चे हैं, सभी से मैं दिल से आज माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. I ask divine energy to fully and completely love myself with love, fill myself with love and with the divine energy. मेरे एक एक सेल के अंदर, जस्ट इमेजिन कीजिए आप सब लोग मेरे साथ कि आपके अंदर वो डिवाइन पावर, वो डिवाइन लाइट आपके अंदर जा रही है। क्राउन चक्रा में से एक एक सेल के अंदर, एक एक सेल को वो लाइट से, वो प्यार से भर देती है। और जो शक्ति आपके अंदर है, उसके सामने ये आपका ईगो या कुछ भी, कोई भी नेगेटिविटी वहां पे टिक ही नहीं सकती है। सो अपने आप को डिवाइन लाइट से सराबोर कर लीजिए, पूरी तरह से अपने अपने आप को वो लाइट के अंदर देखिए। वो रोशनी ने आपको पूरी तरह से प्यार से भर लिया है और एक प्रोटेक्शन लेयर, सुरक्षा कवच आपके आसपास तैयार हो गया है। And now let's take our mirrors, और मिरर के सामने जितना हो सके इतने से अच्छे से हम आज पूरे ये करेंगे अपने एफर्मेशंस। I really, really, really love you, Alethea. I love you and I accept you the way you are. You are perfect as you are. And I'm so grateful for you, whatever you have done and whatever you couldn't do. उस सब के लिए तू जैसी है वैसी मैं तुझे एक्सेप्ट करती हूँ। I love you and I approve of you. तुझे किसी और के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, because I approve of you. I fully and completely honor you, trust you, respect you, and I value you. And I'm fully guided by my inner wisdom. जब कभी भी मुझे कहीं पे भी मैं अटकती हूँ, हमेशा ये इनर गाइडेंस, हमेशा ये शक्ति मेरे साथ है जो मुझे गाइड करती है। And I'm connected to my higher self. I allow the universe to create through me. I have abundance of creative ideas. And I feel intense joy whatever I do. I feel intense joy in whatever I do. मैं जो भी करती हूँ बहुत प्यार से, बहुत ही पैशन के साथ करती हूँ जो भी करती हूँ। And today is the best day of my life. And Alethea, you are the best creation of God. Life always protects me. Life always supports me.
and life supply all my needs in abundance. Life supplies everything in abundance, and I'm perfectly protected and I'm completely safe. And all is well in my world. Everything is so, so, so beautiful in my world. And so it is. ओके आप अपने खुद के भी एफर्मेशंस को ऐड कर सकते हो, जैसे जैसे आपके खुद के जो मूड्स होते हैं उसके हिसाब से. यस, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड इन लाइफ एंड आई डिजर्व ऑल द गुडनेस एंड अबंडेंस. आज पूरा आसमान की तरफ करके कीजिए, बोलिए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुडनेस एंड अबंडेंस इन द यूनिवर्स. आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव. आई एम ओपन. I am open and receptive. Okay, so let's now, what time is it? Okay. अभी ये पैसों की नोट को लेके अपने दिल से रख के पूरे जितने भी पैसे आज तक दिए गए हैं वो सारे पैसों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for all the money I have been given throughout my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much for all the money that I've been given throughout my life. And the gift of life is keeping me alive. The gift of health is keeping me alive. So yeah, let's start our. कुछ भूले तो नहीं ना, आप लोग याद करा देना. चेक. Yes, चेक भूल गए. Yes. Okay. मारी 500 ની નોટ પડી હતી. Thank you for reminder. So yes, थोड़ी देर के 1-2 मिनट के लिए अपने आप को पूरी तरह से चेक के अंदर उसकी जो अमाउंट है उससे जो भी आपको करना था वो पूरा हो चुका है. मे बी इट्स some kind of trip that you want to do, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ अपने घर के लिए कोई चीज खरीदनी है, या हो सकता है आपको किसी को देने हैं पैसे. अरे मोबाइल में क्या उसका पिक लेके देख सकते हैं. मान लो लेके नहीं घूमना हो, मैं अभी शॉप पे हूँ तो रुपी का नोट और ये चेक का फोटो लेके उसको देख सकते हैं मोबाइल में. हाँ, वैसे तो देख सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो होना ही चाहिए हाथ में. नहीं है तो कोई बात नहीं. जब आप घर पे जाओ तब, क्योंकि आपने ये जो चेक मैंने जो कल फोटो लिया था वो मेरे फ्रिज के ऊपर लगा हुआ है, जो मैंने आप सबको कल भेजा था. तो वो जो पिक्चर है मेरे फ्रिज पे ही लगा हुआ है. तो मैं जब भी फ्रिज खोलने जाती हूँ तो मुझे सामने ही दिखता है. और कभी कभी तो मैं उस पर ध्यान देती हूँ, या कभी कभी तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देती हूँ चेक के ऊपर. बट इतना समझ लीजिए कि आपके सामने कोई चीज रहेगी तो भले आप उसको कॉन्शियसली ध्यान नहीं देते हो, बट सबकॉन्शियसली आपका ध्यान उस पर जाता ही रहता है. यू अंडरस्टैंड. मैंने वो चेक को इतना वो नहीं किया था कि हाँ ये मेरा पूरा, बट हाँ मुझे अंदर से बहुत भरोसा था कि ये मुझे मिल जाएगा, मतलब मिल गया है ऑलरेडी. तो वो भरोसे की वजह से मैं भले वो रोज वो चेक को लेके, यानी वो इतना विजुअलाइज भी नहीं करती थी, बट हाँ वो मैं विजुअलाइज करती थी कि मेरे घर का पूरा पूरा हो चुका है, जो भी डेट उसके ऊपर था, लोन था वो. तो वो मैं हमेशा देखती रहती थी, हमेशा मेरी लाइफ में, मतलब मेरे माइंड के अंदर कभी कहीं ना कहीं पे चलता रहता था. बट आई डिडंट फिजिकली हैड द चेक इन माय हैंड, बट या इट वाज ऑलवेज देयर ऑन माय फ्रिज. तो ऐसी जगह पे रख दीजिए प्रोमिनेंटली, में भी आपके कबर्ड के ऊपर. तो आप जैसे ही कबर्ड खोलते हो आपका सामने ही चेक है, ऐसे भी रख सकते. सो इट्स ओके. या अभी इस प्रैक्टिस के लिए इट्स ओके, यू कैन have your mobile check. That's fine, totally fine. Okay, so who would like to read today? Swati want to read, or Manisha, or Arwa, or anyone?
Hakim is at the shop, so I would not ask him. ठीक है, मैं पढ़ती हूँ. Okay, नीलम जी. रियल लव से पढ़ना है, बराबर है. हाँ जी हाँ. Real love doesn't make you suffer. How could it? It doesn't suddenly turn into hate, nor does real joy turn into pain. As I said, even before you are enlightened, before you have freed yourself from your mind, you may get glimpses of true joy, true love, or of a deep inner peace, still but vibrantly alive. These are aspects of your true nature, which is usually obscured by the mind. Even within a normal addictive relationship, there can be moments when the presence of something more genius, something incorruptible, can be felt. But they will only be glimpses, soon to be covered up again through mind interferences. It may then seem that you had something very precious and lost it, or your mind may convinced you that it was all an illusion anyway. The truth is that it wasn't an illusion and you cannot lose it. It is part of your natural state, which can be obscured but can never be destroyed by the mind. Even when the sky is heavily overcast, the sun hasn't disappeared. It is still there on the other side of the cloud. कितने अच्छे से इन्होंने यहाँ पे समझाया है कि आपका जो ट्रू नेचर वे है वो तो हमेशा प्यार है, इंटेंस जॉय है, और वो कवर अप हो जाता है जब भी हमारा माइंड इंटरफेरेंस में आता है. यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं पे ये ट्रू जॉय जो है वो आपने फील किया हुआ है एक्चुअली. अगर आप अपने पिछली लाइफ में देखने जाओगे तो एक एक वहां पे मोमेंट ऐसे होंगे, मे बी आपका जब बच्चा पैदा हुआ और फर्स्ट टाइम आपने उसको हाथ में गोदी में लिया, या ऐसा कोई मोमेंट के जहाँ पे आपने अपने लव्ड वंस के लिए फुल्ली एक वो मोमेंट के लिए वो एक प्यार का एहसास किया, वो प्यार महसूस किया. तो ये सारे जो इंसिडेंट्स है वो हमारी पिछली लाइफ में झांक के हम देख सकते हैं कि वो ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे आपने वो ट्रू जॉय को फील किया था. तो जब जब भी आपने ट्रू जॉय फील किया है वो ही आपका ट्रू नेचर था एक्चुअली. वहां पे एक थोड़े मोमेंट्स के लिए माइंड नहीं था, इसलिए आप वो ट्रू जॉय को फील कर पाए थे. ओके. एंड जब जब भी वो भी ट्रू जो मोमेंट आया था, वो मोमेंट के बाद भी तुरंत ही आप वापस कवर्ड अप हो गए अपने माइंड के साथ, इसलिए फिर वापस वो डिसअपियर हो गया जो भी ट्रू जॉय था. बट कहीं ना कहीं पे आपने वो एक मोमेंट के लिए मे बी, जैसे यहाँ पे भी आगे वो एग्जांपल देंगे कि जैसे आप ये एडवेंचर्स भी करते हो ना, कभी कभी ऐसे एडवेंचर्स, स्कूबा डाइविंग हो गया, फिर या स्काई डाइविंग हो गया, जब ये आप एडवेंचर करते हो तब आप एक अलग ही तरह का एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे आपका ट्रू नेचर यानी ट्रू सेल्फ वहां पे प्रेजेंट होता है, और इसलिए आप इतना अलग तरह का आपका जो बोल सकते हैं कि ट्रू जॉय वो आपको दे के चला जाता है. वो एक मोमेंट भर ही होता है, बट वो एडवेंचर्स के अंदर आपको एक अलग तरह का एहसास होता है. मे बी जिप लाइनिंग या फिर पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग, वो आप जब आसमान में थे तो आपको एक अलग तरह का जॉय फील हुआ होगा. तो वो जो जॉय था वो भले मोमेंट भर यानी क्षण भंगुर होता है वो, क्योंकि वापस माइंड के साथ कवर हो जाता है हमारा, यानी कि थिंकिंग वापस ओवर कम कर लेती है सब चीजों को. बट वो जब जब भी आपने वो ट्रू जॉय फील किया है वो आपका रियल सेल्फ था, वो आपका रियल सेल्फ है. जब भी आप इतना अंदर से ट्रू जॉय या ट्रू कंपैशन या ट्रू काइंडनेस जब आप फील करते हो, वो आपका इनर सेल्फ होता है. एंड जिस तरह से क्लाउड भले ओवरकास्ट होता है स्काई,
तो बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं स्काई के अंदर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे सन नहीं है, मतलब सूरज वहां पे नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जस्ट सूरज के जो किरणें हैं या उसकी गर्मी है पूरे क्लाउड्स के साथ कवर हो चुकी होती है। इसी तरह से हमारा ट्रू सेल्फ हमेशा वहां पे था, रहेगा, वो फॉर्मलेस है, वो हमेशा वहां पे है, बट हम उसको नहीं अभी एहसास कर पाते, क्योंकि हम उसको हमारा पूरा माइंड थिंकिंग की वजह से उसको एहसास नहीं कर पाता। हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसलिए मैंने आप सबको बोला है, बार बार बोलती हूँ कि प्लीज जितना हो सके इतना आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लेके आइए। माइंड के थॉट्स पूरा टाइम चलते ही रहते हैं, राइट? तो भले थॉट्स चलते हैं, उसको आने दो, जाने दो, बट आप अपने आप को एवरी आवर और एवरी 2 आवर्स अपने आप को एम आई अवेयर ऐसा क्वेश्चन पूछो, या फिर खाली आंखें बंद करके अपनी इनर एनर्जी, बॉडी की इनर एनर्जी फील्ड को पूरी तरह से ट्राई, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। वहां पे कोई जजमेंट नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं, कुछ नहीं है। खाली अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि अच्छा मेरे अंदर क्या चल रहा है, अभी मेरे बॉडी के अंदर क्या कोई टेंशन है, क्या मेरा हार्ट बहुत जल्दी बीट कर रहा है। जैसे जैसे आप पहचानने लगोगे, आप देखोगे कि आप धीरे 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 शांत होते जा रहे हो। ये सब आपको खुद ही एहसास होगा, मुझे कुछ बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेट्स रीड। मेरे में कुछ नया ऐप जैसा खुल गया है, कुछ हेल्प अस मेक सर्च बेटर फॉर यू, ऐसा कुछ आ गया है। जहाँ मैं पढ़ रही हूँ ना वहाँ, तो वो जा नहीं रहा है। कुछ है क्या? आई डोंट नो। मुझे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं क्या पढूं? अरे मतलब जो आपने स्क्रीन शेयर किया है ना, वो हाँ, गया गया गया। गया, ओके। क्या हुआ था? आपने कुछ किया? ठीक है, क्या आप था? थोड़ा खाली स्क्रॉल डाउन करना ना। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे खत्म होके फिर यहाँ से स्टार्ट होगा वापस। हाँ हाँ हाँ, कुछ आ गया था इसके ऊपर। नहीं, थोड़ा अच्छा, और नीचे करो, ऊपर का नहीं दिख रहा है। हाँ ये और बुद्धा भी वाला थोड़ा। पहले रीड कर लो। हाँ, कौन सा? द बुद्धा सेज हाँ दैट हाँ हाँ पेन, हाँ, हाँ बराबर है। द बुद्धा सेज दैट पेन और सफरिंग arises through desire or craving, and that to be free of pain we need to cut the bonds of desire. तो यहाँ पे हमारे ट्रू डिजायर्स की बात नहीं हो रही है। जो बुद्धा जो बात कर रहे हैं, वो ऐसी डिजायर का जो हम बाहर से ले लेते हैं, कि भाई मेरी कभी कभी मुझे भी ऐसा फील होता है कि अच्छा मेरी फ्रेंड के पास उसके किचन में ये सामान है, तो यार मुझे भी ये लेना है। तो वो टाइप की डिजायर की यहाँ पे बात होती है, कि जो हमारी ट्रू अंदर से, जो दिल से डिजायर नहीं होती है, वो ऐसी डिजायर जो बाहर से हम लोग एक्वायर कर लेते हैं, कि यार मेरे फ्रेंड के पास इतना बड़ा घर है तो मुझे भी वो घर चाहिए। उस टाइप की डिजायर की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो डिजायर तो, उसका तो कभी अंत ही नहीं है, ऐसी टाइप की डिजायर्स का तो। इसीलिए वो डिजायर्स को अगर हम उसके पीछे भागते रहेंगे, तो हम हमेशा सफरिंग में रहेंगे, हम कभी भी हैप्पीनेस को अटेन नहीं कर पाएंगे। लेट्स रीड। All cravings are the mind seeking salvation or fulfillment in external things and in the future as a substitute for the joy of being. As long as I am my mind, I am those cravings, those needs, wants, attachments, and aversions, and apart from them, there is no I except as a mere possibility, an unfulfilled potential, a seed that has not yet sprouted. In that state, even my desire to become free or enlightened is just another craving for fulfillment or completion in the future. So, don't seek to become free of desire or achieve enlightenment. Become present. Be there as the observer of the mind. Instead of quoting the Buddha,
be the Buddha, be the awakened one, which is what the word Buddha means. बुद्धा का मतलब ही यहाँ पे उन्होंने बोला है बी द अवेकन्ड वन। अगर जितना आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाओगे और अपने माइंड को ऑब्जर्व करने लगोगे, धीरे 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 आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते जाओगे। ओके, यानी एनलाइटनमेंट ऐसा नहीं है कि एनलाइटनमेंट किसी को बोलेंगे कि आप अपने पूरे तरह से अपने ट्रू सेल्फ को पहचान गए, दैट इज कॉल्ड एन एनलाइटनमेंट। और ऐसा नहीं है कि बुद्धा है तो बुद्धा ही एनलाइटन हो सकते हैं या अवेकन हो सकते हैं। हम भी हो सकते हैं अगर हम अपने आप को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाए, बार बार अपने आप को ऑब्जर्व करें रादर देन आइडेंटिफाइड विथ अवर माइंड। जितना हम अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाई होते जाते हैं, वहीं से वो सब क्रेविंग्स आती है, वहीं से बाहर की दुनिया की डिजायर्स आती है, क्योंकि माइंड हमेशा आपको उसी में, वो हमेशा आपको बिजी रखता है कि चल यार तू ये कर ले, यहाँ पे तुझे खुशी मिल जाएगी, तुझे तो ये करना है। लोगों को प्रूव करने में कभी कभी हम लग जाते हैं। माइंड बोलता है कि नहीं, तुझे इसको प्रूव करना है कि तू कैसी है या तू ऐसी है या ऐसी बन गई है। किसी को प्रूव करने में कभी कभी माइंड हमें बताता है कि नहीं, प्रूव करना है तुझे, इससे तुझे खुशी मिलेगी, जबकि माइंड की कोई बातों को हमें सुनना ही नहीं है। आप खाली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, आपका माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। लेट्स रीड। लेकिन ये सब बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ कि मैं इस तरह से बोल के अट्रैक्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन इसको सचमुच हमारे जीवन में लाना, क्योंकि हम इधर से ये लेक्चर पूरा करके जैसे ही उठे ना और ये रूम छोड़ के सिर्फ बाहर निकले ना, हम फिर से अपने रूटीन लाइफ में, मतलब हमें बार बार अपने आप को टोकना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। लेकिन अगर कोई छोटी भी बात फिर से आ जाती है ना, हम ये सब भूल जाते हैं और उसमें फिर से हो जाते हैं। कोई मतलब बात नहीं। इसी इसी बुक को हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार, तो शायद आ जाए। या तो इस टाइप की बहुत सारी बुक्स को हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जूनी बात याद आती है ना, तो भी हम उसमें चले जाते हैं। अभी तक हम अभी इधर तो हम बहुत कुछ सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म क्योंकि बहुत कुछ हमने पहले ऐसा किया है, तो अभी ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो शायद तो 1-2% तो वो सब कम हो ही जाएगा, शुरुआत तो हो जाएगी। फिर चलो, अभी हमें इस बारे में मैं पहले सॉरी बोल चुकी हूँ, तो अब न बोलूं। लेकिन डायरेक्ट एनलाइटनमेंट में पहुंचना तो अभी बहुत लंबी जर्नी है, मुझे लगता है। ये जो बोल रहे हैं कि अवेयरनेस से ही सब काम करना और अपने आप को पहचान लेना, वो काफी लंबी जर्नी है। शुरुआत शायद हो गई है, लेकिन जर्नी बहुत एग्जैक्टली, लंबी है। शुरुआत हो गई ना, वो ही बहुत काफी है। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत अवेकन हो चुकी हूँ या एनलाइटन हो चुकी हूँ। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती, बट मैं इतना, मैंने देखा कि मैंने जैसे ही अपना स्ट्रक्चर बना लिया है, अभी मेरी, जहाँ पे मैं 1 साल पहले थी और 1 साल में अपनी मैं जर्नी देखती हूँ, तो हाँ, डिफिकल्ट है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बट मैं देख रही हूँ कि अभी मेरी जर्नी काफी इजी होती जा रही है। अभी मेरा ट्रू सेल्फ, पहले मुझे खुद को लाना पड़ता है, अभी क्या हो जाता है कि मेरा ट्रू सेल्फ अपने आप अपीयर हो जाता है। जब भी मैं ऐसी कोई नेगेटिविटी में जाती हूँ, अपने आप वो आके मुझे याद दिलाता है कि देख तू नेगेटिव, देख तू इस तरफ जा रही है। हाँ, मैं चली जाती हूँ, मैं पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो जाती हूँ। मेरे साथ भी रोज होता है, हम सबके साथ रोज होता रहेगा। बट जैसे जैसे आप अवेयरनेस में जाओगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी अवेयरनेस ही आपको याद दिलाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा। तो आई नो, हम अभी बहुत ही बेसिक लेवल पे, बिगिनर लेवल पे है। मुझे भी नहीं पता कि एनलाइटमेंट कैसा होगा, अवेकनिंग कैसी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर मुझे अब इतना पक्का हो चुका है कि अगर मैं स्ट्रक्चर में रहती हूँ, इस चीज के अंदर मैं एफर्ट्स डालती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। मुझे इतना हाँ, पता है। कर तो सकते हैं हम लोग, कोई भी कर जैसे सकता मैंने है, ये हमारे अंदर स्ट्रक्चर ही बनाया भगवान है, रहा है। ये देखो, अगर आप मेरे फोन में देखोगे, आपको ये अगर दिखता है कि नहीं, एम आई अवेयर का मैंने पूरा बहुत बड़ा मैंने लिखा इसके ऊपर,
और फिर मैंने यहाँ पे फोन के ऊपर उसकी पिक्चर डाल दी। ये मैंने खुद नहीं लिखा, एम आई अवेयर, ये लिख के मैंने पिक्चर डाल दी। अब जब भी मैं फोन लेती हूँ, ये एम आई अवेयर वाला मेरे सबकॉन्शियस में कंटिन्यूअसली जा रहा है। फिर ऐसे ही जो ये एक्चुअली पोस्ट-इट नोट है, ये पोस्ट-इट नोट मैंने सब जगह पे लगा दी। अपने कंप्यूटर के ऊपर लगाई थी, वो तो निकल गई है, अभी वापस लगानी है, बट मेरे बेड के ऊपर लगा दी है मैंने। सब जगह पे मैंने ये पोस्ट-इट नोट लगाई है। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है। आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने। हाँ, इतना है कि ग्रेटिट्यूड में आपका जो ट्रू सेल्फ है, वो क्या है, ग्रेटफुल सेल्फ है। वो हमेशा परमात्मा ऑलमाइटी का हमेशा शुक्रगुजार है, आपका जो ट्रू सेल्फ है। तो आपको अगर ट्रू सेल्फ की तरफ जाना है, तो आपको अभी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ग्रेटफुल होने के लिए इनिशियली, बट धीरे 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 वो भी आपका एक ट्रू, आपका खुद का एक माइंड ही ट्रेन हो जाएगा कि आप सभी चीजों में ग्रेटफुल हो रहे हो। हाँ, वो तो अभी बहुत कुछ आ रहा है। हाँ ग्रेटफुल होने का अभी बहुत बार आ गया है। हाँ, मतलब अभी-अभी कंप्लेंट्स काफ़ी कम हो गई है और एग्जैक्टली। ग्रेटफुल, हाँ, वो तो पहले से बहुत फ़र्क पड़ा है। हाँ, शुक्राना अभी काफ़ी आया है, वो बात सही है आपकी। क्योंकि अभी प्रैक्टिस भी हम रोज़ कर रहे हैं, यस। तो उसको हम जैसे अपना सकते हैं। मतलब कोई छोटी बात बिगड़ती है, तो उसमें भी ग्रेटफुल होना कैसे करना, हाँ वो जो आपने सिखाया है, वो भी अभी आ रहा है। हाँ, वो एग्जैक्टली, तो बस है। वही। देखो, हाँ। धीरे 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 जर्नी तो आगे बढ़ रही है, राइट? हाँ, भले हाँ, हाँ। डिफिकल्ट है, जो भी है जर्नी, पर आगे बढ़ हाँ, रही है वो। बढ़ रही यानी, है, सही बात है। हाँ, यानी 2 महीने पहले जो हम थे, उससे हम काफी आगे आ चुके हैं। 2 महीने या तीन बराबर है। चार महीने जो भी हाँ, है। हाँ, हाँ, भले स्लो स्लो जर्नी है, बट हम बढ़ रहे हैं, काफी बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, बस बराबर है। यही है। हाँ, इसलिए हमें कुछ हुँ, नहीं सोचना। मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि गॉड ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं कैसे कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, गॉड ने बोला बेटा, अच्छा, मैं तेरा, मेरा सर तेरे हाथ पे है, तू आगे बढ़ती जा, मैं तेरे बराबर साथ हूँ। है, बस, कुछ नहीं, मुझे बराबर। कुछ नहीं सोचना है। डिफिकल्ट है क्या है, मुझे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप हुँ, को बस धीरे 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 अवेकनिंग में लाना है, अपने ट्रू सेल्फ जो मेरे अंदर है ऑलरेडी, उसकी ओर मुझे आगे बढ़ना है। दैट्स इट, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बराबर है। हम्म, ठीक है, पढ़ूँ आगे? हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। Humans have been in the grip of pain for eons, ever since they fell from the state of grace, entered the realm of time and mind, and lost awareness of being. At that point, they started to perceive themselves as meaningless fragments in an alien universe, unconnected to the source and to each other. Pain is तो ये, inevitable. हाँ, ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं? हम जो है वो एक्चुअली भूल चुके हैं, राइट? हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि हम क्या है, हम कहाँ से आए हैं। अभी ये हमें समझना भी हमारे लिए कितना काफी, मतलब मुश्किल है ये समझना कि हाँ, हम कहाँ से, ये हमारा सोर्स एक ही है जहाँ से हम आए हैं। और हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, वो भी हम पहले, अगर हमें आके कोई बताता तो हम वो पहचान ही नहीं पाते। बट जैसे ही हमने ग्रेटिट्यूड किया, तो हमने तो देखा कि हाँ, शक्ति तो है। जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, चीजें बदलने लगती है। तो इसी तरह से धीरे 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 अभी हम समझने लगे कि हम भी इतने ही मीनिंगफुल है। यहाँ पे जैसे बताया कि हम ह्यूमन खुद क्या है वो भूल ही गए हैं। मीनिंगलेस फ्रेगमेंट के अंदर अपने आप को देखने लगे कि हम जैसे अबला नारी है, तो अबला नारी अपने आप को किस तरह से देखती है कि उसके पास कोई पावर ही नहीं है अपने, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, या अपने अपने हालात को चेंज करने के लिए। जबकि हमने देखा कि अगर हम अपने हाथ में ले लेते हैं, तो हम काफी कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से लेट्स रीड फर्दर। Pain is inevitable as long as you are identified with your mind, which is to say, as long as you are unconscious. Spiritually speaking, I am talking here primarily of emotional pain, which is also the main cause of physical pain and physical disease. Resentment, hatred, self pity, guilt,
anger, depression, jealousy, and so on. Even the slightest irritation are all forms of pain. And every pleasure or emotional high contains within itself the seed of pain. Its inseparable opposite, which will manifest in time. तो इवन द स्लाइटेस्ट इरिटेशन, ये भी छोटी छोटी हम चीजों में जो इरिटेट हो जाते हैं, या छोटी छोटी चीजों में भी हम गुस्सा करने लगते हैं या एनॉय हो जाते हैं, वो सब कुछ अनकॉन्शियस होता है, हमें एक्चुअली पता भी नहीं होता है कि हम ऐसा कर रहे होते हैं। बट जैसे जैसे अभी हम अवेयरनेस में आते हैं तो हमें वो स्लाइटेस्ट इरिटेशन भी धीरे 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 पता चलती है। सेल्फ पिटी क्या होता है? सेल्फ पिटी यानी सेल्फ लोथिंग भी उसको बोलते हैं, जैसे कि अपने आप को अपने आप में पिटी देखना कि आप बेचारी बिचारी हूँ, यू नो, बिचारी में अबला नारी। तो अपने आप को ही पिटी करते रहना, मतलब अपने आप के लिए बिचारी फील करना, अपने आप के अच्छा, लिए, यू नो, अच्छा। जिस हाँ, तरह मतलब से। कोई ज्यादा बीमार है तो अपने आप को ऐसा सोचे कि अरे मैं तो बीमार हूँ। हाँ हाँ, वो सेल्फ पिटी हो गया। तो उसको लगता है कि मेरी तो, यानी यू नो, मुझे तो बस ये कष्टों के लिए ही बनाया है और मैं तो यहाँ पे कष्ट भुगतने के लिए ही आई हूँ। इस टाइप की जो थिंकिंग होती है वो सेल्फ पिटी, कि या बिचारी मैं अबला नारी, मैं कुछ नहीं कर सकती, उस टाइप की थिंकिंग, उसको सेल्फ पिटी बोले। तो ये अच्छा, सारी चीजें सेल्फ पिटी, यानी हम अपने पावरलेस फील करते, तभी तो हम सेल्फ पिटी करेंगे ना। अगर हमने जैसे ही अपने आप के पावर्स को पहचाना कि मेरे अंदर तो पावर्स है, आई एम अ पावरफुल बीइंग, जैसे ही हम पावरफुल बीइंग जानते हैं तो फिर सेल्फ पिटी की वहां पे कोई जगह ही नहीं है। तो इसी तरह से ये पूरे जितने भी नेगेटिव सोच है वो कभी भी हमें अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपना जो मेन सोर्स है उसकी तरफ नहीं लेके जाती। जितनी बार हम अपने माइंड के ये सब चीजों के साथ आइडेंटिफाई होते रहेंगे, वहां पे हमेशा पेन रहेगा और बार बार आता है। आपने सभी बुकों में अब तक पढ़ा, राइट? इवन लुइस है की जो बुक है स्पेशली हेल्थ के लिए बनी गई है, यू कैन हील योर लाइफ। तो वो पूरी बुक इसी के बारे में है कि आपका इमोशनल पेन वो ही कहीं ना कहीं पे डिस में कन्वर्ट होता है, जो फिजिकल पेन या फिजिकल डिजीज। तो आपको अगर कोई फिजिकल पेन है तो पहले अपने इमोशंस को आपको चेक करना है कि क्या मैं अपने इमोशन में, वो अनकॉन्शियस होते हैं, यानी कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है कि वहां वहां पे वो मौजूद है, वो भी हमें नहीं पता होता है। बट कोई बात नहीं, अभी कुछ भी नहीं भी हो रहा है तो डोंट वरी, जस्ट बी प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाते रहिए एंड अपने आप को ऑब्जर्व करते रहिए। इतने से ही आपको धीरे 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 एहसास होता जाएगा कि ये खाली छोटी सी चीज करने से ही बहुत बड़ा फर्क आने लगेगा लाइफ के अंदर। इसलिए मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ कि जितना हो सके इतना अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आइए। एम आई अवेयर, खाली इतना पूछना ही है और कुछ नहीं करना है। लेट्स रीड। their their own experience how easily and quickly an intimate relationship can turn from a source of pleasure to a source of pain. Seen from a कहाँ higher, से रीड कर रहे हो आप? कहाँ करना है? होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। ये एनीबडी हु हैज एवर अच्छा, टेकन ये ड्रग्स टू बताइए। गेट हाँ हाई। हाँ हाँ, मुझे नहीं दिख रहा था। ओके। Anybody who has ever taken drug to get high will know that the high eventually turns into a low, that the pleasure turns into some form of pain. Many people also know from their own experience how easily and quickly an intimate relationship can turn from a source of pleasure to a source of pain. Seen from a higher perspective, both the negative and the positive polarities are faces of the same coin, are both part of the underlying pain that is inseparable from the mind identified egoistic state of consciousness.
There are two levels of your pain: the pain that you create now, and the pain from the past that still lives on in your mind and body. Ceasing to create pain in the present and dissolving past pain, this is what I want to talk about now. तो Okay. भी हम इसमें जाएंगे, कल से हम ये पढ़ेंगे पेन के बारे में कि फिजिकल और इमोशनल पेन जो क्रिएट होता है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो इनिशियली मान लो कि थोड़ा सा ही वो लेते होंगे एंड दे फील हाई, फिर वो जैसे ही ड्रग्स का चला जाता है, इफेक्ट चला जाता है, देन दे अगेन फील लो। फिर क्या होता है, उनको वही ड्रग्स की मात्रा बढ़ानी पड़ती है वो हाई फील करने के लिए, क्योंकि वो इनफ नहीं है आपको हाई फील कराने के लिए, बिकॉज वो वापस जो लोनेस होता है उसके बाद, ड्रग का असर चला गया उसके बाद का जो लो होता है वो इतना भयंकर होता है वो पेन, कि उनको वापस हाई मात्रा में ड्रग्स लेने पड़ते हैं तो ही वो वापस वो हाई फील कर पाएंगे। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में भी जो भी हमारी जो ये पेन का सोर्स होता है वो कहीं ना कहीं पे ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटीज बोलते हैं, जो से सेम कॉइन का दो डिफरेंट फेसेस ऑफ द सेम कॉइन है, और वही हमारे पार्ट का पेन का पार्ट होता है which is inseparable from mind identified egoistic state of consciousness। यानी हम कॉन्शियसनेस है, वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, but we identify with our egoistic self of the mind। तो माइंड के साथ हम इतना आइडेंटिफाई अपने आप को कर लेते हैं। तो यही पूरी जर्नी है जो अभी नीलम जी ने बोला कि हाँ ये तो डिफिकल्ट जर्नी है, यही पूरी जर्नी है कि अपने माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट के साथ अपने आप को सेपरेट करना, अपने आप को आइसोलेट करना, और वहां पे देखना कि ये तो माइंड का स्टेट था, ये जो ईगोइस्टिक स्टेट था ये माइंड का था, ये मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं लव हूँ, मैं ट्रू जॉय हूँ, मैं इंटेंस हैप्पीनेस हूँ, वो मेरा ट्रू सेल्फ है। अगर बाकी और भी जो भी कुछ मैं प्रिटेंड कर रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये हम धीरे धीरे और आगे डीप में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने जो माइंड आइडेंटिफाई स्टेट है यहाँ पे से कि कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन, अगर अपने आप को पेन में से निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, लव, लाइट एंड अबंडेंस, एंड सी यू ऑल टुमारो। Thank you and love you all. Okay, bye bye. Thank you, dear. Bye. Merry Christmas to all of you. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank Bye you. bye. Merry Christmas. Merry Christmas.